Good afternoon, and today in a special interview, we have DCP PRO, the spokesperson of Delhi Police, Suman Alva, and prison reformist and media educator Vartika Nanda, who has been hosting the podcast of Delhi Police Kissa Khaki Ka that has completed 1 year today. We are going to be talking to Delhi Police, a spokesperson, on how has been the experience of Delhi Police hosting this podcast, and we'll be talking to Vartika Nanda ji on her journey of hosting the Kissa Khaki Ka, a successful podcast for Delhi Police, the only police force to have their own official podcast in the country. So we'll start with DCP Suman Alva. Please tell us, ma'am, about your experience of Kissa Khaki Ka. How did you start this? What was the thought behind starting this podcast for Delhi Police? We started thinking about having our own social media properties where we can highlight our own work. Yes. And the work done by our people, which was beyond their call of duty. Ji. So when we were like interacting with various units, various districts, and trying to find out such stories, so we came across such beautiful stories that it was such a sheer delight to interact with these people who have gone beyond their call of duty. It's like one of them is distributing helmets. He wants society to be safe. Then one of them is, he's come from a very poor background. So he's giving it back to the society by, opening a school. The other one, he's establishing libraries, wherever he can find the space, because he wanted to give it back to the society. So these were such wonderful stories that, just hearing about them gave me such a immense pleasure. So I wanted to, share that pleasure. I wanted to tell people that when they see a policeman, it's not just the law and order, just the crime and criminal. So they are also people who are going beyond what you would think that their duty is. So it's not that just the duty which is making them work. They have this dedication to do something which is much, much, much above what they are called upon to do. Absolutely right, ma'am. Vartika ji, please tell us, ये आपकी जर्नी कैसी रही है इन खूबसूरत स्टोरीज को लोगों को सुनाने में? बहुत दिलचस्प रही। हर हफ्ते 2.25 मिनट का समय हमारे पास होता था जी। और रविवार को ये स्टोरी जाती थी, मंडे को नई स्टोरी की तलाश हो जाती थी, ट्यूसडे तक स्टोरी फाइनलाइज होती थी, वेडनेसडे तक स्टोरी लिखी जाती थी, थर्सडे को वॉइस ओवर हो जाता था, उसी दिन पॉडकास्ट का प्रोमो लगता था और संडे को ये ऑन एयर होती थी। ये पूरी प्रक्रिया रही जी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि दिल्ली पुलिस की टीम ने मुझे खुद बहुत हैरान किया ये देखना कि ये टीम मीडिया की वोकैबुलरी को कितनी अच्छी तरह से जानने लगी है। इन्हें पता है 5Ws 1H के आगे भी स्टोरीज होती है, स्टोरीज का फॉलोअप होता है, उसकी एक प्रोसेस होती है, स्टोरीज की खूबसूरती होती है, उनको तरीके से बुना अगर जाए और तरीके से सुनाया जाए तो उसका एक अलग चार्म होता है। बिल्कुल। तो हर बार नई नई तरह की स्टोरीज आती रही और उसे पूरी तरह से वेरीफाई किया गया। ये एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने ऑब्जर्व की कि फेयरनेस हो, ब्रेविटी हो, ऑब्जेक्टिविटी हो और उसको तरीके से छाना जाए, उसको देखा जाए कि वो स्टोरी वाकई जाने लायक है भी या नहीं। स्टोरी टेलर के तौर पर मेरे लिए अनुभव इसलिए रोचक था कि ये मैं भी एक्सप्लोर कर रही थी कि देखिए आवाज की उम्र हमेशा लंबी होती है। बिल्कुल। और ये डॉक्यूमेंट करती है स्टोरीज को। तो हमने ये देखा कि कैसे हम छोटी छोटी बातों को छोटे छोटे सेंटेंसेस में बड़ी बातों को हम कह दें, तो सारी चीजें कह भी दी जाएं कम समय में, बिना उदास किए, बिना बोरियत लाए, बिना कसावट के, बिना थकावट के वो कैसे कहा जाए जी। तो एक स्टोरी टेलर के तौर पर ये मेरे लिए भी बड़ा एनरिचिंग एक्सपीरियंस था। एक मीडिया एजुकेटर के तौर पर मैंने ये महसूस किया कि किस्सा खाकी का को करते हुए मैं खुद एक स्टूडेंट हो गई, स्टूडेंट की तरह मैंने सीखा और ये मेरे लिए भी एक पाठशाला बनी। जी मैम, आज दिल्ली पुलिस ने बहुत बड़ा फंक्शन होस्ट किया जो 1 ईयर कंप्लीशन हुआ किस्सा खाकी का। तो जिसे दिल्ली सीपी संजय अरोड़ा जी ने ये बुक भी लॉन्च करी किस्सा खाकी का, which has all the people who have been a part of this किस्सा खाकी का पॉडकास्ट कि सब इसमें इनके बारे में लिखा गया, इनके काम के बारे में लिखा गया है। सो ये आप लोगों ने कैसे सोचा मैम कि यू वांट टू ब्रिंग आउट अ बुक ऑन दिस?
एक्चुअली जब हम सोच रहे थे कि 1 साल कंप्लीट हो गया है, सो वी वांटेड टू ऑनर पीपल हु हैव फीचर्ड इन आवर पॉडकास्ट। हम उनको ऑनर करना चाहते थे, हम एक मोमेंटो के रूप में भी कर सकते थे, लेकिन फिर हमने कहा कि एक ऐसी याद बनानी है जिसको उनका परिवार भी रिलिश कर सके, वो खुद भी रिलिश कर सके। तो फिर हमें ये आइडिया आया कि इसको हमें किताब की फॉर्म में रखें, ताकि ये हमारे लिए एक पोस्टेरिटी में एक डॉक्यूमेंटेड हमारा एफर्ट है वो भी हो, और उनके जो काम है वह भी डॉक्यूमेंट हो। और मुझे विश्वास है कि जब उनका परिवार उनकी फोटो और उनके काम को जब पढ़ेगा इस किताब में, तो नेचुरली एक सेंस ऑफ प्राइड आएगी। और इसी से उनके साथी भी सीखेंगे कि हमने भी फीचर करना है अब किस्सा खाके का में। वी ऑल्सो वांट टू फील दैट प्राइड, आवर फैमिलीज ऑल्सो नीड टू बी देयर। तो उसको सोचते हुए देन हमने ये सोचा कि हम ये किताब ही लाएंगे, और इसकी एक एक प्रति हम सारे डीजीपीज हर एक स्टेट के उनको भी भेजेंगे, ताकि हमारे जो दिल्ली पुलिस में जो इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, हमारे दिल्ली पुलिस के मेरे परिवार के जो सदस्य हैं, उनको मैं पूरी इंडिया में उनके बारे में बताऊं। जी मैम, यहाँ पर किस्सा खाकी का ने 55 एपिसोड्स कंप्लीट किए, और इन 55 एपिसोड्स में ये ऐसे पुलिस पर्सनल हैं जो फीचर हुए हैं, जिन्होंने बहुत अनोखा काम किया। थान सिंह जी हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर वो हेलमेट कॉप है जिन्होंने हेलमेट का इनिशिएटिव किया, उजाला बिखेरती किरण, ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स है। मैंने सिर्फ 2 या 3 मेंशन किए हैं यहाँ पर। ये इन लोगों का जो काम था, इनके काम ने कैसे छुआ आपको? व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? देखिए, इसमें तो बड़ा श्रेय दिल्ली पुलिस की टीम को जाता है। नोडल ऑफिसर्स जो हैं वो भी स्टोरीज को छानते हैं, सोशल मीडिया टीम उस पर काम करती है। सुमन मैम को तो इतनी ज्यादा समझ और पहचान है कि कौन सी खबर असल में खबर के लायक है। ये बहुत बड़ा, ये मैं हैरान इस बात पर होती हूँ कि हम लोग तो जब जर्नलिस्ट थे, और आज भी अपने जर्नलिज्म में कई बार हमें बड़ी ईगो आ जाती है और हमें लगता है कि हमें बहुत आता है, लेकिन कई बार कॉप्स को देखकर ये लगता है कि इन्हें बहुत सारी चीजें इन्होंने बिना जर्नलिज्म स्कूल में गए हुए सीख ली, और जो उन्होंने सीखा है वो भी देखने में बड़ा दिलचस्प है। तो वहां से जब स्टोरीज आती हैं, उसको भी कई बार ये फिल्टर होती हैं कि अब कौन सी स्टोरी इस हफ्ते के लिए है, कौन सी को नहीं लेना है, या कौन सी में कौन सी बात को हाईलाइट करना है। जैसे कई बार एक और जो दिलचस्प बात होती है, कुछ कॉप्स की 8-9 ऐसी उपलब्धियां होती हैं जिन पर आप एक साथ किस्सा खाकी का कर सकते हैं, पर हम लोग कोशिश करते हैं इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल में। कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है। कभी कभी तो हम सिर्फ एक बात को लेते हैं और उसी एक मुद्दे पर हम स्टोरी कर देते हैं, क्योंकि अगर हम बहुत सारी चीजें लाएंगे तो 2.25 मिनट में ऑडियंस को वो बात वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक चैलेंज है। और ये भी है कि हाँ, बहुत सारे कॉप्स ये भी चाहते हैं उनकी स्टोरीज हों, ये भी एक अच्छी बात है। और वो बहुत इंस्पिरेशन भी इससे डिराइव करते हैं। जैसे आज आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में जितने पुलिस ऑफिसर स्टाफ के लोग जो आए, उन सब ने किस्सा खाकी का के सेल्फी पॉइंट में अपनी तस्वीरें खिंचवाई। अब वो सुमन मैम ने जब उस सेल्फी पॉइंट को बनवाया था, आप देखिए कि लोग कई बार मॉल में जाते हैं, वो सेल्फीज खिंचवाते हैं, लेकिन बताइए ऐसा कोई सेल्फी पॉइंट हो जो उनकी अपनी वर्दी के बारे में हो, अपनी यूनिफॉर्म्ड उनके जो उन्होंने काम किया उसके बारे में हो, और उनको वो इंस्पिरेशन देता हो। तो ये एक अलग तरह का सेल्फी पॉइंट है। इसी तरह की ये किताब, ये बात बहुत सही है, मोमेंटोस के बीच में जब ये किताब होगी तो इसकी आप सोचिए शेल्फ वैल्यू कितनी ज्यादा है। वो हमेशा मन को एक उत्साह देगा और उनके परिवारों को भी देगा कि अच्छा काम जब किया जाता है ईमानदारी के साथ तो उसको ऐसे सम्मान मिलता है। तो ये मुझे लगता है कि अच्छी शुरुआत दिल्ली पुलिस ने की है और देश भर की पुलिस अब इससे इंस्पिरेशन लेगी, ऐसा भी लगता है। जी मैम, जब ये सम्मान की बात आई तो आपसे एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि यूजुअली पुलिस को रादर थैंकलेस प्रोफेशन कहते हैं। दे नॉर्मली फील दैट उनका काम लोगों तक पहुंचता नहीं है, और परसेप्शन मैनेजमेंट या छवि बदलने वाली हमेशा बात अक्सर आती रहती है। तो ये जो स्टोरीज हम सुन रहे हैं दिल्ली पुलिस के उन लोगों की जिन्होंने ऐसे काम किए जो कोई सोच नहीं सकता था, जो कहते हैं बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी। सो इस चीज़ से पुलिसमैन के अंदर एक सेंटिमेंट भी जो आया कि हमारे काम को देखा जा रहा है, उसको सराहा जा रहा है। आपको क्या लगा इस चीज़ में? डिड यू फील दैट सेम वाइब फ्रॉम द पुलिसमैन? बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि मतलब आई थिंक इससे उनका मोटिवेशन लेवल थोड़ा और हाई हुआ है, और उनके जो परिवार वाले हैं, आई डोंट नो कितने सपोर्टिव थे, लेकिन अब और सपोर्टिव हो गए हैं जब उनको पता लगा है कि उनका ये काम पैसा बर्बादी नहीं था,
कि इससे ना तो सोसाइटी को दे आर नॉट ओनली गिविंग बैक टू द सोसाइटी, लेकिन इससे एक उनको जो रिकॉग्निशन मिल रही है दैट इज बियॉन्ड देयर रैंक, बियॉन्ड देयर जॉब, तो वो एक अच्छा मैसेज गया है जी। और मुझे लगता है कि अब इससे छवि भी बदलेगी दिल्ली पुलिस की, क्योंकि बहुत बदल गया है जी जी। अभी काफी सालों में हमने देखा है तो वही पुलिस नहीं है जो बहुत साल पहले थी। जब मैंने एंटर किया था पुलिस फोर्स में, और 20 साल में बहुत बदलाव आए हैं जी। जो लोग हमारे एंटर कर रहे हैं वो मेरे और आपके जैसे ही हैं, पढ़े लिखे हैं सब जी। और उनकी एस्पिरेशंस भी हाई हैं, इन द सेंस कि उनको भी लगता है कि वो भी सोसाइटी को कुछ दे जी। उनको भी है कि वो बहुत अच्छे से नौकरी करे, मदद करे लोगों की। और मैं तो उनको यही सीख देती हूँ कि ये वाली तो पुलिस की नौकरी तो ऐसी है कि जिसमें यू गेट पेड टू बी अ सोशल वर्कर, यू आर पेड टू डू अ गुड वर्क। तो लोग तो ढूंढते हैं कि हम कहाँ कहाँ अच्छा काम करें, कहाँ डोनेशन दे, कहाँ दे, और यहाँ हम अपना काम करके ही अपने कार्मिक बैलेंस को मुझे लगता है बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैम ये जो सक्सेस इतना हुआ है किस्सा खाकी का, इसको आप आगे और कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं? ये सवाल आप दोनों से मैं पूछना चाहूँगी। जी सुमन मैम आप बताइए। बिल्कुल, हमारे प्लान्स हैं कि हम इसको और आगे लेके जाएं, और हमारा अपना पॉडकास्ट हम बहुत सारे अभी तो सिर्फ ट्विटर पर ही और अपने वेबसाइट्स पर ही रखा है, बट अभी हम आने वाले समय में हम चाहेंगे कि हम इसको प्रोफेशनली हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, जितने भी अवेलेबल प्लेटफॉर्म है वहाँ तक लेके जाएं, और मे बी इसको हम बाइलिंगुअल करें या मल्टीलिंगुअल, ताकि ये पूरे वर्ल्ड में भी हम अपने काम को लेके जा सके जी जी। तो वो हमारा भी विजन है, हम उसके ऊपर अभी काम करेंगे और इसको और आके लेके जाएंगे जी। बिल्कुल मैम, आप सिंस आप ये पॉडकास्टिंग करती हैं और आपने जेल रेडियो का भी बहुत जगह पर ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया अक्रॉस द इन मेनी स्टेट्स एंड यूटीज, सो पॉडकास्टिंग के बारे में एक छोटी सी चीज़ पूछना चाहेंगे, व्हाई पॉडकास्टिंग? देखिए इसकी कई वजहें हैं। जेल का काम मैं बरसों से कर रही हूँ और मैं हमेशा ही देखना चाहती थी, एक तो पुलिस अपराधी को पकड़ती है, वो जेल के दरवाजे तक ले जाती है, फिर उसके बाद वो आदमी जेल के अंदर जाता है। अब मेरा सर्कल पूरा हो गया। जेल के अंदर मैं देखती हूँ जेल में पहुंचने के बाद वो इंसान बदला या नहीं बदला, जेल पहुंचने तक पुलिस ने कैसे उस अपराध को पकड़ा, समझा और उस मामले को सुलझाने की कोशिश की। तो इसलिए ये दोनों अनुभव जब जुड़ते हैं तो एक अलग तरह की जिंदगी का पर्सपेक्टिव भी बदलता है। जेल का रेडियो, जैसे आज 16 जनवरी को हरियाणा का जेल रेडियो आज ही के दिन पैदा हुआ था और तिनका तिनका ने वो जेल रेडियो शुरू किया था। आवाज को इसलिए मैंने चुना, आवाज बहुत समय तक जिंदा रहती है, याद रहती है, और गाड़ी चलाते हुए, घूमते हुए कहीं भी आदमी आवाज को सुन सकता है। दूसरा, आवाजों के साथ लोगों की हेसिटेशन बहुत ज्यादा नहीं होती। आप किसी को इंटरव्यू कर रहे हैं तो वो तैयार होकर इंटरव्यू देने के बजाय ऑडियो इंटरव्यू देने में भी कई बार ज्यादा कंफर्टेबल होता है। और तीसरी बात ही कि उसकी स्पेस ही अलग है, उसका सुकून ही अलग है, और खास तौर पर ऐसी आवाजें जो शोर ना देती हो। और मुझे ऐसा लगता है कि टेलीविजन ने इतना शोर दिया है, उस शोर के बीच में अब शांति की आवाजों की लोग तलाश करने लगे हैं। तो मुझे लगा कि पॉडकास्ट एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है जहां पर आप सुकून के साथ, सुख के साथ कुछ बातों को कह सकते हैं, सुनने वाला भी उन्हें सुनकर शांति पाता है और कहने वाले को भी उसी तरह से एक शांति मिलती है, क्योंकि आप इत्मीनान से अपनी बात को कह पा रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले साल असल में आवाजों के साल है। बिल्कुल मैम। सो हम आशा यही करेंगे कि आपका जो पॉडकास्ट है इससे कई ज़्यादा बुलंदियां छुए और आपकी ये जो आवाज़ है वो बल्कि इंडिया ही नहीं वर्ल्ड के हर कॉर्नर तक पहुँचे, जैसे सुमन जी ने कहा। एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस and giving your valuable time for this interview. Thank you so much, Suman ji. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.